Good morning, students. So today we will be discuss about the coal and petroleum. Since लास्ट क्लास के अंदर रिसोर्स को क्लासिफाई किया था, रिसोर्स को समझा था, रिसोर्स किस तरह से होते हैं. रिसोर्स we classify them into the two groups, natural resource and the synthetic resource, and then we classify the natural resource into the two groups. One is exhaustibles and another one was the inexhaustible groups. Okay. So in the last we had discussed about the fossil fuels. And I said we will be discuss in this video about the fossil fuels and how we classify them into the few categories. Now, the meaning of the fuels, as we know that the meaning of fuels, a substance and object which produce the heat and the light on the burnings, these will be known as the fuels. And when we talk about the fossil means I have already discussed about remain part of organism both animals and plants. So fossil fuels meanings those fuels which are produced or which obtained by the remaining or the dead plants, the dead organisms. Okay. And we know that those dead plants which were buried under the earth crust from the long years ago, I mean before the more than 1 billion years ago, so they were decomposed in the absence of air and sunlight, and these convert into the fossil fuels. And we know that the majorly organisms are plants. Okay. So fossil fuels are conversion of the plants remaining. Okay. So plants is found in the two surface. One is the land surface, as we know that majorly plants are found in the land surface, and some plants are also we found in the marine surface. Okay. Marine surface, I mean the below the level of sea water. Okay. So the land surface in the sea waters, there are also some plants are grow. They are known the marine plants, and those plants which are grown on the land surface, they will be known as the land plants. So we know that the land on the land surface there are land plants, and they are large in size. I think you have seen there are plants which are very large in size, heavy in structures. They are very thick. Okay. So and similarly the marine plants on the marine surface there are marine plants. They are very tiny in nature. They are very tiny in structures. They are very small. Okay. So I just draw the small structure of these plants, and there are very large structures of the land plants. Okay. And we know that the fossil fuels are the remaining part of the plants, majorly plants. Okay. So if we see that there are the large structure of the land plants, and if they decompose during the same time, suppose 1 million years. Okay. If they decompose, it will be break into the large size majorly. Okay. Similarly, there are very small tiny plants, and they are decomposed easily, and they get converted into the liquid and sometimes gaseous phase. Okay. So marine plants are very short, very tiny, and they easily decompose into the liquid and gases. But the land plants, they are very heavy in structures, they are very large in size, they decompose majorly in the solid form. But sometimes it also decompose in liquid form. Okay. So what we get from there, those plants which decompose on the land surface, the land plants, they majorly decompose into the solid substance. Solid substance means they majorly convert into the coal, fossil fuels, and petroleum. Sometimes, okay, very rare case on very few regions area where we get the petroleum on the land surface. But majorly the marine surface, if we see there, majorly are the small or tiny plants. They convert into the liquid and gas. Liquid I means the petroleum, gas means the natural gas. So majorly marine plants are decomposed into the petroleum and natural gas. Okay. So
So I think you have seen the petroleum well, yeah, oil well majorly found into the ocean regions. Why? Because the major petroleum is found in the oceans, and the coal is majorly found on the land surface. I think you know that the Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand, these are the state of India where we are finding the coal. Okay, so only few area where we find the petroleum on the land surface. If we're talking about the India, there are in Assam, there are one regions where we get the petroleum from the land surface, but majorly we find the marine surface or the ocean surface. Okay, so I think you got the basic understanding of the petroleum, natural gas and petroleum and solid. We are not classified by the dark line कि लैंड सरफेस पे हमें पेट्रोलियम और कोल ही मिलेगा, या फिर जो मैराइन सरफेस है वहाँ पर हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैराइन सरफेस पे हमें प्लांट्स सॉरी नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और कोल भी मिलता है, बट कोल हमें स्मॉल क्वांटिटी में मिलता है, काफ़ी स्मॉल में। अगर हम मैराइन सरफेस को कोल से मैराइन सरफेस से कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए हम सिर्फ मैराइन सरफेस से क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को। बट लैंड सरफेस की बात करें तो वहाँ से कोल काफ़ी इजीली से एक्सट्रैक्ट हो जाता है, पेट्रोलियम भी इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाता है, बट वहाँ नेचुरल गैस, पेट्रोलियम बहुत रेयर मिलती है। ओके, सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल द मीनिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ द सब्सटेंस, व्हाट आर द डिकम्पोजिशन प्रोसेस। अब हम क्लासीफाई करते हैं पेट्रोलियम्स, coal and natural gas. Coal, and we know that these are the solid form of the fossil fuels, but for जो coals है वो मोस्टली लैंड सरफेस पे मिलेगा। कोल कैसा होता है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है सॉलिड फॉर्म में। आपने देखा होगा जो कोयला होता है जिससे हम ट्रेन चलाते थे पहले, वो हमारा कोयला होता है, ठीक है, और कोयले को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोल बोलते हैं। तो कोल एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, और अगर हम कोल को बर्न करें, इफ वी डायरेक्टली बर्न द कोल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम कार्बन। कोल इज मेजरली constitute of the carbon substance, carbon atoms. Okay, it is majorly made of the carbon atoms, and if we burn the carbons in the presence of oxygen, it will be converted into the carbon dioxide gas. Okay, I just write the name of carbon dioxide gas or plus heat. Okay, these are the fuels, so definitely it will give the heat. Okay, suppose if we burn the coal, I mean the carbon, heat in the absence of oxygen, there are we are not giving the oxygen in a closed container, we are just burning the coal. हमने हीट करना स्टार्ट किया, क्लोज कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी, और हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, कोल को हीट दे रहे हैं। जब हम कोल को हीट देते हैं, कोल क्या हमारा कार्बन फॉर्म है इन सॉलिड फॉर्म, जब हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया तो ये कुछ गैसेस सब्सटेंस के अंदर, कुछ लिक्विड सब्सटेंस के अंदर और कुछ सॉलिड सब्सटेंस के अंदर ब्रेक हो गया। जैसे हमने कोल को हीट करना स्टार्ट किया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, यानी हाई टेम्परेचर्स पे, क्योंकि ये सॉलिड है और हमने ऑक्सीजन नहीं दी। ऑक्सीजन देंगे तो वो सीधा जल जाएगा, बर्न हो जाएगा, क्योंकि वो भी चीज़ जलती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, बट we are not giving the oxygen here, so it will be converted into the gas, liquid and solid substance. So when we burn the coal in the absence of the oxygen, it will be give the gas. Gas will be known as the coal gas because it's we get from the coal. Liquid is known as the coal tar, plus solid is known as the coke. Okay, so there are three substances we get from a single coal when we burn it in the absence of air. One is coal gas, second is coal tar, third one is the coke. So one by one we will study about the coal gas, then coal tar, then coke. Coal gas क्या होता है? Coal gas is also a form of the gas which is usually used as a fuel in the some industries. ये भी एक गैस ही है, तो गैस को भी एज हम फ्यूल ही यूज करते हैं, काफी ज्यादा इंडस्ट्री में यूज करते थे। जो कोल तार होता है,
कोल तार का आपने नाम सुना होगा, आई थिंक यू नो दैट। कोल तार इज ए लिक्विड वेरी ब्लैक, काफी डर्ट होता है, ये बिल्कुल गाढ़ा होता है, काला होता है सब्सटेंस। जो कोल तार होता है वो कहाँ यूज किया जाता है, मेटेलिंग द रोड ऑन द सरफेस। जब हम रोड बनाते हैं तो वहाँ पर एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस यूज करते हैं, उसमें हम कोल तार यूज करते थे। ये पहले यूज करते थे, जिसको हम इंग्लिश वो बोलते थे डाबर, ठीक, उसके ऊपर बजरी चला लेते थे, वो बोलते थे उसको कोल तार। आजकल हम न्यू यानी कि बिटुमिन सब्सटेंस यूज करते हैं, अभी वो भी हम क्लासीफाई करेंगे। तो कोल तार इज यूज इन द मेटेलिंग द रोड, और इसको हम पेंट में भी यूज करते हैं, जो हम घरों में पेंट लगाते हैं, पेंट बनाने के लिए भी काफी ज्यादा यूज होता है, इंडस्ट्री में भी यूज होता है, कुछ मेडिसिन में भी यूज होता है, ठीक, कोल तार का। If we talk about the coke, coke एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, ये भी सॉलिड ही फॉर्म है। कोल और कोक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। कोल के अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं, बट कोक के अंदर इम्प्योरिटीज नहीं होती। ये क्या होता है, प्योर कार्बन होता है, प्योर कार्बन। ओके, तो ये प्योर कार्बन है, इसको यूज करते हैं एक्सट्रैक्शंस के अंदर। व्हेन वी एक्सट्रैक्ट एनी मेटल्स वी यूज द कोक। सपोज कोई मेटल्स हमने एक्सट्रैक्ट किया, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज हैं, तो उस इम्प्योरिटीज को रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कोक यूज करते हैं। ये हम हायर क्लास के अंदर स्टडी करेंगे कि कोक का मेजरली यूज क्या होता है। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ व्हाट आर द मीनिंग ऑफ कोल गैस, कोल तार एंड कोक एंड हाउ इट फॉर्म। अगर कोई भी आपसे रिएक्शंस पूछी जाती है कि कोल गैस कैसे प्रोड्यूस होता है, कोल तार या कोक, तो सिंपल रिएक्शंस, we will strongly heat to the coals in the absence of air, it will be break into the coal gas, coal tar and coke. Okay, so I think you understand the meaning of तीनों word. Okay, now we will discuss about the petroleum. Second, petrol is, I think you know that it is a liquid form of the fossil fuels. अगर हम पेट्रोलियम्स की बात करें तो पेट्रोलियम्स इज क्रूड ऑयल्स, इट्स डार्क ऑयल्स। ओके, क्रूड ऑयल्स काफ़ी गंदा ऑयल्स होता है, काफ़ी क्रूड ऑयल्स होता है, ठीक है। क्रूड ऑयल को गंदा ऑयल बोलते हैं, यानी कि जो डार्क होता है, काले कलर का होता है, ठीक है। When we extract it from the oil wells, it is very crude and the dark, and it has a very large number of impurities. So we just refine it. Okay, इसको हम रिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम इसको रिफाइन करते हैं तो हमें कुछ फ्रैक्शंस मिलते हैं इनकी। फ्रैक्शंस का मीनिंग क्या होता है कि ये हमारे पास काफ़ी गंदा सब्सटेंस थे, काफ़ी ज़्यादा इम्प्योरिटीज हैं। जब हम इसको रिफाइन करते हैं, रिफाइन करने का मीनिंग क्या होता है कि हम इसके जब उसको धुलाई करते हैं, सफाई करते हैं, ठीक, तो उसके बाद हमें कुछ सरफेस या कुछ फ्रैक्शंस देखने को मिलेंगे। फ्रैक्शंस का मीनिंग होता है कुछ ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर ज़्यादा इम्प्योरिटीज होती है, कुछ ऐसा सब्सटेंस जिसमें कम इम्प्योरिटीज होती है। तो यहाँ पर हम फ्रैक्शंस बना लेते हैं। ओके, तो जो सबसे प्योर फॉर्म होती है, यानी कि जो पेट्रोलियम होता है, इन द प्रोसेस ऑफ द रिफाइनिंग सम पेट्रोलियम इज इवेपोरेट एंड दीज इवेपोरेट करेक्टली गैदर्स। तो जो इवेपोरेट हो चुका उसको जब हम इकट्ठा करते हैं उसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस, इसको मैंने सबसे टॉप पे क्यों लिखा है, क्योंकि ये सबसे लाइट होती है, सबसे प्योरीफाई होती है एक तरह से, और मेजरली होती क्या है, मीथेन। ठीक है, नाउ जो सबसे ऊपर फॉर्म में मिलेगा हमें वो होता है पेट्रोल। मैं नाम लिख देता हूँ, पेट्रोल। सेकंड नंबर पे पेट्रोल। पेट्रोल का मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम इसको टॉप पे लिख रहे हैं तो ये काफ़ी प्योर फॉर्म है, और हमें पता है पेट्रोल का यूज कहाँ होता है, गाड़ियों के अंदर एज ए फ्यूल यूज करते हैं इसको, ठीक है, जो छोटे मोटे व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर। थर्ड पे हम बात करेंगे अगर, तो कैरोसिन। मीनिंग पेट्रोल के कंपेयर में कैरोसिन काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है, यानी कि ये ज़्यादा प्योरीफाई है, ये उससे कम प्योरीफाई है, ये उससे थोड़ा सा मटीला कलर का होगा, काला कलर का होगा, ठीक है। वैसे इसका ब्लू कलर होता है, बट पेट्रोलियम के कंपेयर में थोड़ा सा डल होगा, डर्ट होगा। तो जो कैरोसिन होता है इसका हम यूज़ ना करते हैं, एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। पहले हम स्टोव्स के एज ए यूज़ करते थे, जो स्टोव यूज़ करते थे घर में, बट हम इसको इंडस्ट्रीज़ के अंदर एंड जब हम मशीन्स के जो पार्ट्स होते हैं, जब हम उनको वॉश करते हैं तो उसके लिए भी हम कैरोसिन का यूज़ करते हैं, ठीक, मशीन्स के पार्ट्स की धुलाई के लिए। नाउ द फोर्थ इज डीजल। डीजल इज ऑल्सो द पेट्रोलियम फ्रैक्शंस। ओके, तो यानी कि डीजल हमारा कैरोसिन से ज़्यादा डार्क होता है, इसके अंदर ज़्यादा इम्प्योरिटीज होती है पेट्रोल के कंपेयर में, ठीक। तो डीजल कहाँ हम यूज़ कहाँ करते हैं, इन हैवी व्हीकल्स। ओके, एज ए फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं, सारे के सारे क्या है, एज ए फ्यूल्स यूज़ होते हैं मोस्टली। ये कहाँ यूज़ होता है, इन हैवी व्हीकल्स, जो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, जैसे ट्रक, बस,
and tractor. Now the fifth one is lubricant oil. Lubricant oil. Okay, I think you know the meaning of the lubricant. Lubricant, when we use the lubricant, it is used in the reduce the frictions. Okay, so majorly lubricant oil is used in the machine's parts to reduce the frictions and it can be work properly. आपने स्टिचिंग मशीन देखी है, उसमें हम ऑयल्स यूज करते हैं ताकि जो काम है, जो फंक्शन है उसका, वो काफ़ी स्मूथली हो जाए, इजीली हो जाए, ठीक। तो उसमें हम लुब्रिकेंट्स ऑयल यूज़ करते हैं। मोस्टली मशीन्स के अंदर लुब्रिकेंट्स ऑयल यूज़ किया जाता है उसके फ्रिक्शंस को रिड्यूस करने के लिए। अब हम बात करें नेक्स्ट फ्रिक्शंस की। ये लुब्रिकेंट ऑयल्स डीजल से भी ज़्यादा डेंस होता है, हायर होता है। ये हमने क्या लिखा है, फ्रैक्शंस लिखा है, लाइटर देन उससे हैवियर 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 और चलता जाएगा, ठीक। लुब्रिकेंट ऑयल्स के बाद हम उसको पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स ये वैक्स बनाने के लिए यूज होता है। जो कैंडल्स होती हैं, कैंडल्स भी किसकी बनी होती हैं, पेट्रोलियम की बनी होती हैं। कैंडल्स, वैक्स पेपर्स, जहाँ पर भी हम वैक्स का यूज कर रहे हैं वो वैक्स क्या है, पेट्रोलियम। ओके, इट इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पेट्रोलियम सब्सटेंस। सो पैराफिन इज कंपैरेटिवली मच denser the lubricant oil. Now next the bitumen. Bitumen is also a black colored substance and it is now used in the metallic the road. और ये मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है, काफ़ी सारी मेडिसिन बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए। जैसे जैसे वहाँ कोल तार का यूज़ कर रहे थे, कोल तार को रिप्लेस कर दिया गया है बिटुमिन से। आजकल एडवांस में बिटुमिन ज़्यादा चलता है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कंपेरेटिवली उसके। तो ये बिटुमिन सिंगल सब्सटेंस नहीं होता, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं, कुछ लार्ज नंबर, यानी कि करीबन समथिंग 100 छोटे छोटे सब्सटेंस से मिल करके एक बिटुमिन सब्सटेंस बनता है, ठीक है। ये हम हायर स्टडी के अंदर पढ़ेंगे कि बिटुमिन होता है। सो आई थिंक यू नो द मीनिंग ऑफ द बिटुमिन, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेंट ऑयल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम गैस। ओके, सो ये जो हमने क्लासिफिकेशंस क्या है, किसके बेसिस पे क्या है, इनके फ्रैक्शंस के बेसिस पे क्या है, कौन कितना प्योर है, कौन कितना कम प्योर है। सबसे प्योर पेट्रोल, और ये सारे के सारे एज ए फ्यूल ही यूज़ करते हैं उनको। किसी चीज़ को किसी में यूज़ कर देते हैं, कभी हम पेंट में यूज़ कर रहे हैं, कहीं हम मेडिसिन में भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसका भी यूज़ कहीं डिफरेंट डिफरेंट है, बट आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोल के अंदर किस तरह से क्लासिफिकेशंस क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं नेचुरल गैस के बारे में। अभी हमने जो पेट्रोलियम गैस लिखी थी सबसे टॉप पे, जो पेट्रोलियम गैस होती है ये काफ़ी वेपराइज हो जाती है। जब हम इसको कंडेंस करते हैं हाई प्रेशर पे, तो ये किसकी फॉर्म में हो जाती है, लिक्विड की फॉर्म में हो जाती है। किसकी फॉर्म में होती है, लिक्विड की फॉर्म में होती है। पेट्रोलियम गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब लिक्विड फॉर्म में होती है तो इसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और शॉर्टकट में क्या बोलते हैं इसे, एलपीजी। एलपीजी का मीनिंग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो पेट्रोलियम गैस को हम लिक्विफाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, आजकल घरों के अंदर एज ए फ्यूल्स। जो हमारे किचन के अंदर सिलेंडर यूज़ किया जाता है वो हमारे एलपीजी गैसेस होती है। और मेजरली में होता क्या है, मीथेन। मीथेन इज ए गैस, ओके। सो मेजरली मीथेन होती है, बाकी सारे भी होते हैं बट वो हम बाद में, ओके। आपको इनके पता होना चाहिए एडवांटेज मीथेन के, ये एलपीजी की एडवांटेज क्या है। एलपीजी जो गैस हम यूज़ करते हैं घरों में, इसको यूज़ करने के बाद कोई रेजिड्यू नहीं बचता, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती है, ये सीधा का सीधा बर्न होती है, ठीक है। इसके बाद कोई ऐसा हमारे पास नहीं होती, कोई रेजिड्यू नहीं रहता, ठीक। नाउ वी विल डिस्कस द नेचुरल गैस। नेचुरल गैस ये हमें नेचर से ऑब्टेन हो रही है, यानी कि सीधा का सीधा हमें गैस फॉर्म के अंदर मिलती है। तो जो नेचुरल गैस होती है, नेचुरल गैस भी हमारा क्या करते हैं, इसको सीधा वही यूज करेंगे एज ए फ्यूल। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज है जो सीधा का सीधा फ्यूल्स इसको यूज़ करती है, तो उसका कोई यूज़ भी नहीं है। सीधा हम इसको इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए या मशीन्स का फंक्शंस करने के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। और जो नेचुरल गैस है ये हमारी CNG, आपने देखा होगा ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो हम व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस को कंप्रेस्ड फॉर्म के अंदर दिया जाता है, यानी कि CNG। तो CNG किस में यूज़ की जाती है, ये
व्हीकल्स के अंदर आजकल हमने डीजल और पेट्रोल की जगह व्हीकल्स के अंदर हम आजकल सीएनजी भी देखते हैं। सीएनजी भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। इसका बेनिफिट क्या क्या होता है? इसका बेनिफिट होता है कि अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो ये एक तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती है, ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं फैलाती है, सीधा का सीधा कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होती है, ना तो सल्फर गैस ना कार्बन मोनोऑक्साइड, कुछ हार्मफुल गैसेस ज़्यादा नहीं निकलती इससे, ना ही कोई रेजिड्यू मिलता हमें, यानी कि कोई अवशेष नहीं मिलता। ठीक है, तो नेचुरल गैस को हम एक ही फॉर्म में लेते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और ये हमारे व्हीकल्स के अंदर इसको हम यूज़ करते हैं, और भी काफ़ी जगह यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इनका। ठीक, सो आई थिंक यू द मीनिंग ऑफ दिस सब्सटेंस natural gas, petroleum and coals. Okay, if you have any doubt you can ask. Thank you.